A very good morning, children. Children, this is your English period, so kindly get ready for the session. Today we are going to start with the new chapter in grammar, that is articles. All right. Children, you must have learnt this chapter in class 1 and in class 2. So in class 3 we are going just a little step further in the topic articles. So children, what are articles? You know what are articles? आपने class 1 में and 2 में पढ़ा होगा that a and the, these three are articles, right? And हम कब use करते हैं a? When do we use the? When do we use an? आपने थोड़ा बहुत याद होगा शायद क्लास 1 and 2 में आपने पढ़ा हो. So this is the topic for today's session and I am going to explain you what are articles, where it is used and how it is used. Alright, so let's begin with the session. Articles are the words that are used before noun. Children, you know what is a noun? Noun is a name of a person, place, animal and thing, right? So children, whenever we write a sentence, so in that sentence you will find an, a and the, right? You will find all these articles. Wherever it is necessary, we put that article before a noun. यानी नाउन के पहले जो भी वर्ड लगेगा, या तो ए लगेगा या द लगेगा या एन लगेगा, सो दीज थ्री वर्ड्स आर कॉल्ड आर्टिकल्स. और नाउन के जस्ट बिफोर लगता है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अ बॉय, राइट, एन एलिफेंट, द सन, राइट. वी राइट ना, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, सो सन इज़ अ नाउन एंड नाउन के पहले हमने द लगा दिया. अब हमने सन के पहले द क्यों लगाया बेटा, अ क्यों नहीं लगाया? सो दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सेशन. ऑल राइट. सो चिल्ड्रन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, राइट. टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स होते हैं. एक होता है बेटा इनडेफिनेट आर्टिकल एंड होता है एक डेफिनेट आर्टिकल. यानी देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स. फर्स्ट वन इज indefinite and the second one is definite. So what is the meaning of indefinite? Indefinite article means those articles we use for general things. General things matlab normally, these are not specific things. Definite means कोई specific thing है and we are using the before a specific noun. But when there is a non-specific noun and when there is a general statement or general noun, then we use a or an. And when we are talking about specific thing, then we use the. All right, so we will discuss this in depth in the next slide. So what is an indefinite article? So indefinite article में कौन से दो आर्टिकल आएंगे बेटा? ए एंड एन. ओके, एन आएगा बेटा इनडेफिनेट आर्टिकल में एंड ए आएगा. सो इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से हैं? ए और एन. ठीक. ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स बिकॉज दे आर यूज्ड टू रेफर समथिंग इन अ लेस स्पेसिफिक मैनर एंड अनस्पेसिफिक काउंट नाउन. दैट इज वो स्पेसिफिक नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल. फॉर एग्जाम्पल अ बॉय. अ बॉय मीन्स एनी बॉय, कोई भी बॉय. दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक. अ बॉय हैज़ गिवन मी अ पेन. ठीक. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर हम उसी बॉय के बारे में बात करेंगे कभी लेटर स्टेज पे, देन वी विल टॉक लाइक दैट, द बॉय हु हैज़ गिवन मी द पेन. राइट. जब हम किसी के बारे में पहली बार बात करते हैं,
That means if we are talking about a noun for the first time, then we write a or an, right? Use a or an to identify nouns that are not definite and not specific. That is general terms में if we are talking about a noun, then we use a or an. For example बेटा, the sun is shining brightly. तो बेटा sun क्या है? Sun is not general statement. Sun is a specific thing, right? Specific noun. So that is why we have used the sun. अब चिल्ड्रन आपको तो पता है vowels, what are vowels and what are consonants. We have 26 alphabets, right? So you know what are vowels. There are 5 vowels and 21 consonants. So in generally we have studied in class 1 and 2 that before a vowel we put an and before a consonant we put a, right? आपने ये क्लास 1 एंड 2 में ये बेसिक चीज़ तो आपने पढ़ी थी बेटा कि वाल के पहले हम एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट के पहले अ लगाते हैं, है ना? बट हम इससे कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे इस क्लास में, ओके? थिंक, अब नेक्स्ट हम लाइन पढ़ते हैं बेटा, ध्यान दीजिए. थिंक ऑफ अ एंड एन एज मीनिंग एनी और वन अमंग मैनी. मतलब बेटा जहाँ भी अगर नाउन के पहले अ या एन लिखा रहेगा तो उसका जनरल मीनिंग क्या है बेटा? एनी. दैट इज़ अ बॉय, अ बुक, अ पेन. दैट इज़ एनी बुक, एनी पेन, राइट? एग्जाम्पल अ बुक, अ डॉग, अ कैट, अ हाउस. दैट इज़ बहुत सारे हाउस हैं और उसमें एक कोई हाउस है. तो हम इन जनरल बता रहे हैं, यानी जब हम जनरल स्टेटमेंट की बात करते हैं, हम जनरल नाउन्स की बात करते हैं, तब हम ए और एन लगाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वाल एंड कॉन्सोनेंट्स. इफ़ द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ अ नाउन इज़ वाल वी पुट एन, एंड इफ़ द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ द नाउन इज़ कॉन्सोनेंट वी पुट अ. ऑल राइट, लेट्स मूव फर्दर. A is used before words beginning with a consonant sound. You know what are consonants? Consonants are those words which are not vowels. And what are vowels? A, E, I, O, U. You already know this. For examples, this is a tree. Tree, tree का पहला alphabet क्या है बेटा? T. T is a consonant. राइट? टी इज़ नॉट अ वाल, टी इज़ अ कॉन्सोनेंट. देयरफॉर कॉन्सोनेंट के पहले हम अ लगाते हैं. एंड इसका एक और मतलब क्या है? दिस इज़ अ ट्री मीन्स दिस इज़ एनी ट्री, और इतनी सारी ट्रीज़ में से कोई एक ट्री है. दिस इज़ नॉट अ स्पेसिफिक ट्री, ठीक है? अ ट्री मीन्स एनी ट्री. दिस इज़ अ बुक, बुक मीन्स एनी बुक, राइट? नॉट अ स्पेसिफिक बुक. ठीक, इतनी सारी बुक्स है हमारे पास, 10 बुक्स है. आई हैव पिक्ड अ बुक, यानी उनमें से कोई भी एक बुक पकड़ ली, ठीक है, बुक उठा ली. तो वो स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है. दिस इज़ अ गर्ल, एनी गर्ल. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अ एग्जाम्पल दैट आई मेट अ गर्ल. द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटिफुल. देखिए, जब हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला, जब फर्स्ट टाइम बोला आई मेट अ गर्ल, दैट मीन्स आई मेट एनी गर्ल, राइट? हम कोई भी लड़की से मिले, देन हम दोबारा उसी गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने लगाया द गर्ल वॉज ब्यूटिफुल, यानी उसी गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, वही गर्ल ब्यूटिफुल है जिससे मैं मिली थी, राइट? सो जब हम सेकेंड टाइम बात करते हैं किसी के बारे में तो हम द यूज़ करते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक हो जाता है. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट गर्ल इज़ ब्यूटिफुल whom I met yesterday, right? तो जब हम स्पेसिफिक की बात करते हैं तब हम द लगाते हैं. एकदम आप बिल्कुल समझ लीजिए बेटा, बिल्कुल, कि कहाँ पे द लगाते हैं और कहाँ पे अ लगाते हैं. अगर हम पहली बार किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो जनरल बात कर रहे हैं तो हम अ लगाएंगे, और जब हम उसी चीज़ के बारे में दोबारा बात कर रहे हैं, यानी सेकेंड थर्ड टाइम बात करेंगे, तो हम द लगाएंगे. ऑल राइट, फिर से एग्जाम्पल लेते हैं. I met a boy yesterday. I met a boy yesterday. यानी कल मैं एक बॉय से मिली, राइट?
द बॉय वॉज वेरी जेंटल, यानी मैं जिस लड़के से कल मिली थी, दैट बॉय इज़ वेरी जेंटल, राइट. वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम बॉय whom I met yesterday. All right, so in the first statement I wrote I met a boy, and in the second statement I discussed the boy whom I met yesterday was very gentle, right. I hope थोड़ा बहुत समझ में आया होगा बेटा आपको. Let's move further. Now where do we use an? You know already beta, an is used before beginning of with a vowel sound. For examples, this is an egg. So egg का first alphabet क्या है बेटा? E. Therefore E is a vowel and we use an before egg. This is an elephant. ठीक, elephant का first alphabet E है. E is a vowel and therefore we used an before elephant. This is an owl. ठीक, owl का फर्स्ट अल्फ़ाबेट बेटा O है. O इज़ अ वाल, देयरफॉर वी यूज्ड an बिफोर owl. लेट्स मूव फर्दर विद डेफिनेट आर्टिकल्स, है ना. आपको मैंने पहले ही बताया था देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट. इनडेफिनेट में बेटा ए और एन आता है और डेफिनेट में क्या आता है? द. व्हाट इज़ डेफिनेट आर्टिकल? डेफिनेट आर्टिकल्स दैट इज़ द ही बेटा डेफिनेट आर्टिकल्स है. द इज़ कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल एज इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट समथिंग स्पेसिफिक. जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करेंगे, पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात करेंगे, देन वी यूज़ द. वी यूज़ द विद वर्ड्स लाइक सिनेमा, थिएटर, radio, seaside, etc. Beta, these are the examples you should remember where we can use the. Example, we go to the cinema every Saturday. यानी every Saturday we go to the same cinema. अलग अलग सिनेमा हॉल नहीं जा रहे हैं बेटा, ठीक है. That is why the is used. Same cinema every Saturday we used to go. All right. Can you turn on the radio please? अब पूछ रहा है, अब बोल रहा है बेटा, someone is asking you, someone is requesting you that can you turn on the radio please. यानी वो इशारा कर रहा है that वो वाला रेडियो जो सामने रखा है ना उसको टर्न ऑन कर दो. तो द रेडियो दैट इज़ द स्पेसिफिक रेडियो. आपके पास बहुत सारे रेडियो नहीं है, यू डोंट हैव चॉइसेस इन रेडियो एंड समवन इज़ आस्किंग टू टर्न ऑन एनी रेडियो, है ना. एक रेडियो होगा और आपके घर में कोई पूछ रहा होगा, कोई बोल रहा होगा कि बेटा कैन यू टर्न ऑन द रेडियो. दैट इज़ वन स्पेसिफिक रेडियो इज़ केप्ट इन द रूम एंड समवन इज़ आस्किंग यू टू टर्न ऑन द यानी ऑन कर दो रेडियो, राइट. दैट इज़ वाई द इज़ यूज्ड बिफोर रेडियो, बिकॉज रेडियो यहाँ पे स्पेसिफिक और पर्टिकुलर थिंग वहाँ पे रखी है. शैल वी गो टू द बीच टुडे. ठीक, मतलब ही हैज़ ऑलरेडी मैंशनड अबाउट द बीच earlier and he is asking shall we go to the beach today. क्या हम वही सेम बीच आज चले, right. That is why the beach is written. Let's take some examples. The sun is hot. अब बेटा सन के पहले द क्यों लगा? क्योंकि सन एक पर्टिकुलर थिंग है विच इज़ यूनिक एंड ओनली वन. तो हम द उस जगह भी लगाते हैं बेटा जब कोई यूनिक चीज़ होती है एंड ओनली वन ऑफ इट्स काइंड होती है, सिर्फ एक होती है, देयर तब हम द लगाते हैं नाउन के पहले. फॉर एग्जाम्पल द अर्थ, अर्थ एक ही है बेटा, देयरफॉर वी यूज़ द बिफोर अर्थ. द मून, अब हमारे प्लैनेट में तो एक ही मून है बेटा एंड दैट इज़ अ स्पेसिफिक पर्टिकुलर नाउन एंड इट इज़ ऑल्सो यूनिक, वन ऑफ इट्स काइंड. यूनिक मीन्स वन ऑफ इट्स काइंड, एक ही होता है तो एक ही है. सो देयरफॉर द मून के पहले लगा है. द मून शाइन्स इन द स्काई. ऑल राइट. द बुक इज़ ऑन द टेबल. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द बुक विच इज़ केप्ट ऑन द टेबल. So you must know that only one book is kept on the table and I am talking about that book. The book is kept on the table. Children, अब the कहाँ कहाँ यूज़ होता है? स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन के पहले तो यूज़ होता ही है बेटा. और द कहाँ यूज़ होता है? द यूज़ होता है बेटा प्लूरल नाउन्स में.
जहाँ भी आपको दिख रहा है कि नाउन्स प्लूरल हैं, फॉर एग्जाम्पल बुक्स, बॉयज़, स्टूडेंट्स, क्लासेस, राइट। सो जहाँ भी आपको प्लूरल नाउन दिखे, ES या S वाले नाउन्स दिखें, मोर देन वन कोई पर्टिकुलर थिंग दिखे, राइट, प्लूरल नाउन्स के पहले वी विल यूज़ ऑलवेज द, क्योंकि बेटा अ और एन का मतलब होता है ओनली वन, ठीक। अ और एन का मतलब होता है वन, ठीक। एंड एनी, टू मीनिंग्स होते हैं हमारे ए और एन का। अ और एन का मतलब होता है वन और एनी, और द हमेशा सिंगुलर के साथ भी यूज़ होता है और प्लूरल नाउन्स के साथ भी यूज़ होता है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में प्लूरल नाउन है, फॉर एग्जाम्पल बुक्स, अ बुक इज़ केप्ट ऑन द टेबल, ठीक है, अ बुक इज़ केप्ट ऑन द टेबल, द बुक इज़ केप्ट ऑन द टेबल, लेकिन हम द बुक्स, अब बुक्स में अगर हम एस लगा दे, प्लूरल बना दे बेटा, तो द बुक्स इज़ केप्ट ऑन द टेबल बोल सकते हैं, लेकिन अ बुक्स बोल सकते हैं, यानी बुक्स में एस लगाए, बुक इज़ अ प्लूरल नाउन, बुक्स इज़ अ प्लूरल नाउन, एंड उसके पहले हम अ लगा सकते हैं, नो, क्योंकि अ मीन्स वन, तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि हम अ लगा के वन भी बोल रहे हैं और हमने बुक्स में एस भी लगा दिया और उसे प्लूरल भी बना दिया है ना, तो वो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टडी वेयर द इज़ यूज्ड अपार्ट फ्रॉम द प्लूरल नाउन्स एंड द स्पेसिफिक नाउन्स, ओके। सो द इज़ यूज्ड बिफोर ओशंस एंड सीज, फॉर एग्जाम्पल द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, तो हमारे यहाँ 5 ओशंस है बेटा, 5 ओशंस आर देयर इन द वर्ल्ड, सो ऑल द 5 ओशंस के पहले द लगता है, बिकॉज दीज ओशंस आर स्पेसिफिक नाउन। सीज, अब सीज क्या होती है बेटा, अरेबियन सी, तो हम बोलेंगे द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल सी, ऑल राइट, क्योंकि सीज भी बेटा बहुत सारी सीज हैं, बट एवरी सी हैज़ अ डिफरेंट नेम, राइट, अलग अलग सीज के अलग अलग नाम हैं, एंड दे रेफर एज पर्टिकुलर और स्पेसिफिक थिंग, ठीक। और कहाँ यूज़ करते हैं बेटा, माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंजेस के पहले अगर माउंटेन रेंजेस का कोई नाम आएगा तो हम उसके पहले द लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल द हिमालयास, ठीक। माउंटेन रेंजेस क्या होता है बेटा, रेंजेस क्या होता है, रेंजेस मतलब माउंटेन, खूब सारे माउंटेन्स एक लाइन से हों तो उसको बोलते हैं हम माउंटेन रेंजेस, ठीक है। तो द हिमालयास, सो हिमालयाज में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट है जो आपने सुना होगा, कंचनजंगा है, K2 है, ठीक है, दीज आर ऑल माउंटेन पीक्स इन द हिमालयाज माउंटेन रेंज, ऑल राइट। सो द हिमालयाज जो कि एक माउंटेन रेंज है, तो हमने उसके पहले द हिमालयाज लगाया, क्योंकि द हिमालयाज एक यूनिक नेम है, एक पर्टिकुलर माउंटेन रेंज का नाम है, ऑल राइट। रिवर्स, अब बहुत सारे रिवर्स हैं हमारे कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में, तो हर रिवर का एक पर्टिकुलर नेम है, ठीक। तो हम हर नेम के पहले द लगा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल द गैंजेस, यानी द गंगा रिवर जो है तो उसको हम इंग्लिश में द गैंजेस बोलते हैं, द यमुना रिवर, ठीक, द साबरमती रिवर, तो जो भी रिवर है वो स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है बेटा, दैट इज़ वाई वी यूज़ द बिफोर रिवर नेम, ऑल राइट। बुक्स एंड न्यूज़पेपर, सो बेटा बुक्स एंड न्यूज़पेपर के पहले भी हम द लगाते हैं, बुक्स नॉट इन जनरल बेटा, अगर कोई बुक का नाम है, अगर किसी भी बुक का नाम दिया हुआ है तो हम उस बुक के नाम के पहले द लगाएंगे, न्यूज़पेपर का नाम दिया है तो हम न्यूज़पेपर के पहले नाम लगाएंगे, फॉर एग्जांपल द हिंदू, द गार्जियन, ठीक है, गार्जियन इज़ द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, एंड द हिंदू, हिंदू भी न्यूज़पेपर का नाम है, ऑल राइट। फेमस बिल्डिंग्स, बेटा फेमस मॉन्यूमेंट्स, फेमस बिल्डिंग्स जो होंगे वर्ल्ड में या इंडिया में कहीं भी होंगे तो हम उसके पहले भी द लगाएंगे, क्योंकि वो वन ऑफ इट्स काइंड है, वो सिर्फ एक ही है पूरे वर्ल्ड में, ठीक। फॉर एग्जाम्पल द ताज महल, द कुतुब मीनार, ऑल राइट। The things are
दैट आर ओनली फॉर देयर ओन काइंड, यानी वन ऑफ इट्स पर्टिकुलर काइंड, या फिर यूनिक जो भी चीज़ें होती हैं हम उसके पहले द लगाते हैं। बेटा एक आप याद रखिएगा, द कहाँ नहीं लगाते हैं। बेटा कहाँ पे आर्टिकल्स हम नहीं लगाते, द भी नहीं लगाते, ए भी नहीं लगाते, एन भी नहीं लगाते। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ पे नहीं लगाते। बेटा किसी भी नाम के आगे, जैसे किसी भी पर्सन के नाम के आगे हम ए और एन और द कुछ नहीं लगाते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बॉय हैं, आपका नाम राहुल है, राइट, योर नेम इज़ राहुल, तो हम कभी भी द राहुल नहीं बोलेंगे। राहुल, शिवानी, राइट, प्रिया, तो इन सब नेम्स हैं, दे आर नेम्स ऑफ अ पर्सन, दे आर द नेम्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़। तो किसी भी गर्ल या बॉय के नेम के पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ना द लगाएंगे, ना अ लगाएंगे, ना एन लगाएंगे। ऑल राइट, सो चिल्ड्रन, this much is for today, and in the next session we will begin the exercise from the book. All right, so kindly watch this video thoroughly, and in case you have any problem you can ask me on the WhatsApp group. Thank you so much children, and have a nice day.